पहले तो ये चीज कि यार अगर तुम एआई रियली करना चाहते हो सो डोंट डू इट बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग, जो कि अभी काफी हो रहा है आई गेस। एक्चुअली यू रियली शुड बी इंटरेस्टेड, मतलब तुम्हें अंदर से आना चाहिए कि हाँ यार ये बहुत मस्त चीज है, और उसको करने में तुम्हें मजा आना चाहिए, लाइक तुम्हें रियली इंटरेस्ट आना चाहिए करने में। ऐसा नहीं कि हाँ बिकॉज इट्स ट्रेंडी एंड सारी जॉब्स इधर हैं तो हम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। Hello everyone, welcome to our sixth podcast. So in this podcast, our guest is Mr. Shivansh Mundra. He is a final year undergraduate at IIT Kharagpur and recently bagged a pre-placement offer from LinkedIn as applied research engineer. In his fourth year, he also had offers with Amazon Research, IBM Research, and Swiggy as in ML roles. So in this series, this is an extension of our series of off-campus opportunities. So in the previous video, we talked about how one can widen opportunities in software development roles. In this video, Shivansh will be discussing his journey that how one can get opportunities in ML roles. So hi Shivansh, welcome to our podcast. Hey, hi Jalaj, thanks for having me here. It's really great work you've been doing. So regarding me, I'm Shivansh Mundra. I'm from Bhilwara, Rajasthan. Right now, I'm in my fifth year, and I am from mechanical department. Unfortunately, also from what Jalaj have told you, I've done some work, like some foreign internships in my third year, and some publication in ML domain. So from my experience, if anyone can get some help, it would be great. So yeah, that's all. Thank you, Shivansh. So now that as you already mentioned that you are from mechanical background, so like hailing from this background, how did you get into AI and ML? Okay, so in like from my childhood days, I was really interested into mathematics and neurology, and like how brain works. I was very curious about it. So once I got into college, I explored my interest, and then I was surfing net, and I accidentally stumbled upon this term artificial intelligence. I studied this like on my own, surfing it through net, and you know what it is. And actually, in my first year only, I got to know yeah, there are online courses about artificial intelligence. So I started doing online courses. Apart from that, there was a research group in IIT Kharagpur. So I really and there was an AI team there. So as I was already intrigued by this AI thing, I thought that I need to get there, and I prepared for it, and then I got into that research group. In that research group, I got many seniors, like काफी seniors मिले, उन्होंने काफी गाइड किया कि क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या चीजें होती हैं। उसके अलावा पैरेलली मैं कुछ एआई की कोर्सेज कर रहा था ऑनलाइन। What should be the next step? क्या मैंने एक कोर्स कर लिया, एनडी वाला कोर्स कर लिया, डीप लर्निंग वाला कोर्सेज कर लिए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए किसी के लिए कि क्या क्या करे वो बंदा कि कैसे अपने को डेवलप करे, कैसे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करे? पहले तो ये चीज कि यार अगर तुम एआई रियली करना चाहते हो सो डोंट डू इट बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग, जो कि अभी काफी हो रहा है आई गेस। एक्चुअली यू रियली शुड बी इंटरेस्टेड, मतलब तुम्हें अंदर से आना चाहिए कि हाँ यार ये बहुत मस्त चीज है, और उसको करने में तुम्हें मजा आना चाहिए, लाइक तुम्हें रियली इंटरेस्ट आना चाहिए करने में। ऐसा नहीं कि हाँ बिकॉज इट्स ट्रेंडी एंड सारी जॉब्स इधर हैं तो हम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है, क्योंकि जो कोर्स है जो एमएल वगैरह है, इसमें तुम्हें कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उतना फाइट नहीं लगता है। लाइक यू हैव टू, अगर तुम्हें बेसिक बेसिक कोर्स पता है तो तुम चला सकते हो चीजें, तुम कुछ ऊपर से कर सकते हो, बट टू रियली गेट इनटू डेप्थ यू नीड टू स्टडी अ लॉट। तो आफ्टर डूइंग फर्स्ट लाइक कोर्स, आई थिंक एक कोर्स एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता है एमएल का। नाउ अब एमएल काफी डिवाइडेड है, जैसे एमएल के काफी टॉपिक्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस है। वन ब्रांच इज कंप्यूटर विजन, वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अनदर वन इज स्टैंडर्ड डेटा एनालिसिस जो लोग करते हैं, जिनमें अभी बहुत ज्यादा जॉब्स लाइक इन सॉफ्टवेयर साइड। Apart from that, there is like more research topics like reinforcement learning, and if you go on higher level, तो quantum machine learning भी है। So I guess once you do these courses, uh, you can either read some books for more in-depth knowledge. Like अगर तुम्हें उस साइड जाना है जो डेटा एनालिसिस वाली साइड है, जहाँ पे तुम्हें कोर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, मैथमेटिक्स है ना, जो बेसिक्स एमएल की मैथमेटिक्स होती है, तो उसमें बुक्स पढ़ सकते हो। तो मैं बुक्स बता देता हूँ, शायद एक दो जो मुझे पता है। टॉम मिचेल जो काफी अच्छी बुक है, और एक बिशप की है, पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन लर्निंग, इट्स लाइक होली ग्रेल इन मशीन लर्निंग। तो ये काफी अच्छी बुक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक चूज योर सब ब्रांच फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किस साइड में मुझे अभी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे अगर तुम इमेजेस और पिक्चर्स में काफी इंटरेस्ट रखते हो ना, विजुअल्स में, तो फिर कंप्यूटर विजन इज लाइक द वन यू शुड गो इनटू। अगर तुम्हें टेक्स्ट और नेचुरल लैंग्वेज रीडिंग काफी पसंद है कि मैं कैसे, जैसे अगर तुम्हें ओपन एआई का जो जीपीटी 3 आया था जहाँ पे जो वो खुद से सेंटेंसेस जनरेट करते हैं, अगर वो पसंद है तो गो इनटू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें टैबुलर फॉर्म और जो बेसिक एमएल है, जो
है ना, वो ज़्यादा पसंद है, तो डेटा एनालिसिस में, एंड देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च साइड, तो वो चीज़ें हैं। तो ऐसे मैंने एक्सप्लोर किया था, और मेरे केस में आई आई गॉट कंप्यूटर विजन टू बी लाइक द वन व्हिच इज़ मोर इंटरेस्टिंग, मुझे इमेजेस और उनमें चेंज करना काफ़ी अच्छा लगता था। तो इनमें भी फिर ऐसा है कि अगर तुम एक बार कंप्यूटर विजन में चले जाते हो, तो उसमें द वन कोर्स दैट इज़ recommended is CS231N. It is a Stanford यूनिवर्सिटी का कोर्स है, ऑनलाइन है, कोई भी कर सकता है, उनके असाइनमेंट्स भी है। तो आफ्टर डूइंग दैट कोर्स आई डिड द CS231N पूरे, मैंने लेक्चर्स देखे और फिर असाइनमेंट्स जो थे उनके बिना किसी पैकेजेस या बिना किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के खुद स्क्रैच से कोड करने होते थे। सो काफी चैलेंजिंग टाइम था, बट या एट सेम टाइम आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट कोर्स। तो ओके। और अगर तुम्हें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जाना है, तो उसी के लिए एक CS224N करके कोर्स है स्टैनफोर्ड का ही, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। उसके अलावा डेटा एनालिसिस का तुम्हें बता ही दिया, बुक्स पढ़ना है, और कैगल में कॉम्पिटिशन वगैरह कर सकते हो, तो उसके काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिशन होते हैं टैबुलर फॉर्म में। रिगार्डिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो थोड़ा रिसर्च वाला टॉपिक है, बट आई रियली हैव सम एक्सपीरियंस इन दैट साइड ऑल्सो। सो वहाँ पे तुम सर्टन पार्ट करके एक बुक है वो स्टार्ट कर सकते हो, या इन जनरल कुछ यूनिवर्सिटीज के और सारे कोर्सेज है, मैं इनकी लिंक्स डाल दूंगा तुम वीडियो में, तो वहाँ जाके तुम देख सकते हो कि क्या चीज़ कर सकते हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग लाइक आफ्टर डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज आई थिंक यू शुड पिक अप वन ब्रांच जहाँ पे तुम्हें रियल इंटरेस्ट आ रहा है, और फिर उसी को परस्यू करना होता है। ओके शिवांश, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा तरीका होगा कि अब कैसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। एंड गाइस, एज यू मेंशन, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तुम लोग जाके विजिट कर सकते हो डिफरेंट कोर्सेज के और डिफरेंट बुक्स के। सो शिवांश, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, एक बाइफर्केशन होता है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन सा इस चीज़ में, तो आप अगर बता सको क्या फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में, और क्या बंदे को प्रोसीड करना, तो क्या चीज़ हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर? हाँ, तो ये काफी ऐसा क्वेश्चन है जो काफी लोग के मन में आता है, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा डेटा एनालिस्ट का। तो डेटा एनालिस्ट एक्चुअली वो आदमी है जो जो तुम्हें डेटा है उसमें वो कुछ नए एल्गोरिदम्स या नए मेथड्स डेवलप नहीं करेगा, ऑलरेडी जो डेवलप मेथड्स हैं उनसे नई इनसाइट्स निकालेगा कि इसमें क्या चीज काम आ सकती है हमारे, है ना, ये एक बेसिक होता है। तो इसको करने के लिए यू व्हाट यू कैन डू इज कि जो हमारा एक बेसिक एमएल होता है ना, एक डीप लर्निंग होता है जो आई गेस सब जानते होंगे। तो जो बेसिक मशीन लर्निंग है वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होती है डेटा एनालिसिस वाले रोल में, या डेटा एनालिसिस की उस ब्रांच में। जैसे और इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो टेबुलर डेटा, बेसिकली टेबल्स होंगी, तुम्हें कुछ वैल्यूज दी होंगी अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तुम्हें बैंक की डिटेल्स और पर्सन्स के बारे में कुछ बता रखा होगा, तो इनमें तुम्हें कुछ डेटा एनालिसिस करके कुछ इनसाइट्स या कुछ रिकमेंडेशन ये सब निकालने होते हैं। तो दैट ब्रांच गोज अंडर डेटा एनालिसिस वाला। डेटा साइंटिस्ट ऑन द अदर हैंड क्या करते हैं कि नए मेथड्स नए मॉडल्स डेवलप करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव। तो वो मोर ऑन द रिसर्च साइड हो जाता है, और डेटा एनालिसिस मोर ऑन द इंजीनियरिंग साइड। ये एक बाइफर्केशन है वहाँ पे। ओके। सो मूविंग टुवर्ड्स योर फील्ड, लाइक मतलब एक बार कोर्सेज कर लिया और हाँ, वी फाउंड आउट कि इस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि यार अब मेरे को ये ब्रांच में जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या-क्या करना चाहिए? मतलब मुझे इंटरेस्ट है कि डेटा साइंटिस्ट वाला जो आपका रोल है, तो उस वाले में जाना है, तो क्या हमें प्रोसीड कैसे करना चाहिए उसके लिए? हाँ, तो इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि अलग-अलग कुछ तरीके हैं। लाइक जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जितना भी कुछ बता रहा हूँ, ये मेरी स्टोरी है। ऐसा हो सकता है कि कोई और के पास बहुत अच्छे तरीके हों। दिस दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड व्हाट हैज़ वर्क्ड फॉर मी। सो या इस चीज़ को ध्यान रखना। रिगार्डिंग एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें किस ब्रांच में आना है, तो लेट्स से वी टॉक अबाउट डेटा एनालिसिस वाला चीज़। उसमें व्हाट यू कैन डू इज़ देयर आर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स इन कैगल या और भी जो भी मशीन लर्निंग की कॉम्पिटिशन वाली साइट है, वहाँ पे जाके तुम अपना कोई भी एक कॉम्पिटिशन चूज़ करो और उसे स्क्रैच से खुद से ट्राई करो, ठीक है? उसमें एक्यूरेसी अच्छी लाने का, नए-नए मेथड्स ढूँढने का। अगर एक कॉम्पिटिशन तुम खुद से कर लेते हो ना, तो उसमें बहुत कुछ सीख जाते हो। द फर्स्ट कॉम्पिटिशन दैट यू डू ऑन योर ओन, यू लर्न अ लॉट, लाइक तो चूज़ एनी वन कॉम्पिटिशन एंड देन ट्राई एंड गिव योर बेस्ट शॉट एट इट। वहाँ पे ट्राई करो और कुछ अच्छा लाने का ट्राई करो। ये डेटा एनालिसिस वाली साइड में। उसके अलावा तुम प्रोजेक्ट्स कर सकते हो डेटा एनालिसिस में। अब तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मोर और लेस दोनों में अप्लाई हो जाते हैं, डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस में। तो व्हाट व्हाट हैपेंस इज आफ्टर यू हैव अ गुड बेसिक नॉलेज, या अच्छा तुम्हारा स्ट्रांग हो गया है, तो तुम अब चीजें कर सकते हो, जैसे कि एक तो प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना?
तो या तो तुम किसी प्रोफेसर को पिंग कर सकते हो कि सर आई हैव डन दीज कोर्स ऑनलाइन, एंड इफ यू हैव समथिंग फॉर मी, तो मैं प्रोजेक्ट करना चाहूंगा आपके अंडर, machine learning professors in your university. Apart from that, what I did is this there are these many conferences happening in machine learning. अब तो काफी ज्यादा बढ़ भी गई हैं। तो उन कॉन्फ्रेंसेज में क्या होते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो वो होस्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम जाके सर्च कर सकते हो, अगेन आई विल गिव लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। वो कंपटीशन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच पे होते हैं, जैसे कुछ कंप्यूटर विजन पे होते हैं, कुछ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे होते हैं। तो वो कंपटीशन उस कॉन्फ्रेंस के अंडर होते हैं, एंड देन वो ओपन होते हैं वो, तो तुम जाके वहाँ compete कर सकते हो। तो मैंने मेरे सेकंड ईयर में एक कंपटीशन था यूरोपियन कॉन्फ्रेंस कंप्यूटर विजन में, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड उसमें आई लाइक डेडिकेटेड माई सेल्फ टोटली। तो मैंने उस समय मेरे को कोडिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती थी, एंड डीप लर्निंग भी उतनी अच्छी नहीं आती थी, तो आई स्टार्टेड लर्निंग अलॉन्ग विद द कॉम्पिटिशन। तो मैंने चीजें करी, कुछ रैंडम चीजें करी, कुछ समझ में नहीं आता, फिर मैंने इंसाइट निकाली कि अच्छा ये करने से ही हो रहा है। तो वो इसी कॉम्पिटिशन में काफी कुछ सीख गया था। और फिर क्या हुआ कि उस कॉम्पिटिशन में अच्छे रिजल्ट की वजह से मेरा पेपर भी पब्लिश हुआ उसी कॉन्फ्रेंस में, एंड देन आई वेंट टू जर्मनी टू प्रेजेंट दैट पेपर। तो उसकी वजह से काफी नेटवर्क वगैरह अच्छे हो गए, एंड देन यू गॉट सम गुड रेफरल्स आल्सो। अब क्योंकि तुम एक किसी कंपटीशन में इतना अच्छे से पार्टिसिपेट करके उसमें कुछ अपना जो तुमने नॉवल मेथड डेवलप किया उसको पब्लिश कर लेते हो, नाउ यू कैन शो इट इन योर सीवी, एंड देन अब ये तुम्हारी सीवी में एक ट्रेडमार्क हो जाता है कि हाँ मैंने खुद से ये किया है, एंड आई नो एवरी बिट एंड पीस ऑफ इट या दिस प्रॉब्लम। तो देन इट शोज समवन हु इज लुकिंग फॉर यू, या हु इज लुकिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट, कि हाँ इसने खुद से किया है, एंड देन ही हैज सम गुड नॉलेज बिकॉज उसका रिजल्ट भी अच्छा है, एंड देन आल्सो यू हैव पेपर। आफ्टर डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज, तो थर्ड चीज हो सकती है वो इंटर्नशिप हो सकती है, ठीक है। बट होता क्या है कि जनरली इंटर्नशिप में दे नीड अ प्रूफ ऑफ वर्क कि इस बंदे ने कुछ काम किया है क्या। क्योंकि तुमने अभी तक केवल ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं जो हर कोई कर सकता है, इसमें कुछ ग्रेडिंग सिस्टम तो होता नहीं है ऑनलाइन कोर्सेज में, तो यू कैन हैक इट एंड डू इट ऑल। सो वो लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं कि केवल ऑनलाइन कोर्सेज के बेसिस पे। कुछ कुछ स्टार्टअप्स में शायद हो सकता है, बट इन जनरल इंटर्नशिप में दे नीड सम गुड वर्क फ्रॉम योर साइड कि हाँ तुमने कुछ काम किया। तो आई गेस द फर्स्ट थिंग यू कुड डू इज ट्राई एंड गो फॉर सम कॉम्पिटिशन्स और सम प्रोजेक्ट्स इन लाइक योर यूनिवर्सिटी। ये कुछ तरीके हैं जो मेरे काम आए थे। ओके, सो दैट्स लाइक, हाँ अगर आपको प्रोसीड करना है आपको किसी फील्ड में, तो हमें एक आइडिया आ कि यार ऐसे ऐसे प्रोसीड करना चाहिए। सो इसके अलावा यार कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है कि जैसे मशीन लर्निंग अगर हम एज अ फील्ड बात करते हैं, तो जैसे आपने बोला बहुत सारी नई कॉन्फ्रेंसेज आ रही है, और मतलब रोज कोई ना कोई नया स्टेट ऑफ द आर्ट आ जाता है कि हाँ ये नया है। तो अपने आप को कीप अप विद द कंपटीशन हम लोग कैसे हमें अपने आप को रख सके कि यार हाँ ये नई चीजें मैं इन्फॉर्म्ड हूँ, मैं पूरा इसके बारे में मुझे पता है। तो हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ विद द कंपटीशन, इसके लिए क्या आपकी टिप्स रहेगी? कंपटीशन तो नहीं कहूंगा मैं उसे, ऐसा कह सकता है कि नई नई रिसर्च आजकल रोज पब्लिश हो रही है, हर रोज इतने पेपर आ रहे हैं कि ह्यूमन रोज नहीं पढ़ सकता। और इसे भी है, तो इससे काफी लोग परेशान भी रहते हैं। इसके लिए जो मैंने चीज ट्राई करी थी वो ये थी कि मेरा जो फील्ड था, जो जो चीजें मुझे इंटरेस्ट करती थी, मैंने उन्हीं पे फोकस किया रादर देन गोइंग ऑन वेरी ऑफ शोर, ठीक है। कुछ पेपर्स होते हैं ना जो बहुत अच्छे से, मतलब क्या कहते हैं, बहुत हाईलाइट हो जाते हैं या बहुत अच्छे होते हैं, जैसे जीपीटी हो गया है ना, ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, कुछ कुछ पेपर्स हैं जो लाइक एक बेंचमार्क हो जाते हैं डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग में। तो वो तो पढ़ने ही होते हैं सबको, वो इतना आ जाता है। बट कुछ कुछ पेपर्स होते हैं जो, अब इसमें क्या है कि तुम लाइक यू नो ऑथर्स, यू नो पीपल जो तुम्हारे फील्ड में काम करते हैं। लेट्स से मैं कंप्यूटर विजन की बात करूँ, तो मुझे पता है कि कुछ प्रोफेसर काफी अच्छे हैं, कुछ लोग या कुछ पीएचडी स्कॉलर, तो वो लोग जो काम करते हैं तो मैं उन प्रोफेसर को फॉलो करता हूँ, जैसे ट्विटर हो गया, सोशल मीडिया पे, या फिर गूगल स्कॉलर पे, मोस्टली ट्विटर ही, ठीक है। तो जब भी कोई नई पब्लिकेशन होती है तो दे पुट कि हाँ माय पेपर इज बीन पब्लिश एंड दिस, तो आई सी की ओके, देन आई सी की पेपर का टाइटल क्या है, एंड इफ द पेपर टाइटल हैज इंट्रिग्ड मी अ लॉट, देन आई गो एंड रीड द समरी ऑफ पेपर लाइक यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑल। अगर फिर मुझे वो बहुत अच्छा लगा तो आई टेक सम टाइम लाइक एन आवर समथिंग, एंड देन आई रीड इट थॉरली, एंड देन उसका कुछ समरी में नोट्स में लिख लेता हूँ कि हाँ ये चीज काम की थी इसमें, आइदर सम शॉर्ट ब्लॉग और सम समरी काइंड ऑफ थिंग। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा है कि तुम फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लो, और वहां पे उस ग्रुप में जिसको भी कुछ बहुत अच्छी चीज मिलती है वो पोस्ट कर दे जाओ, तो एक अपना एक इनफॉर्मल सा ग्रुप हो जाता है। या फिर इसको अगर कॉलेज में कर रहे हो तो पेपर रीडिंग ग्रुप भी बना सकते हो अपना। हमने खुद ट्राई किया था मेरे कॉलेज में।
तो एक ये चीज होती है, ठीक है। दूसरा कुछ ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पे वो लोग स्पेसिफिकली जो अच्छे पेपर है उनकी समरीज खुद से लिख के देते हैं, ताकि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना ना पड़े। यू कैन चूज बिटवीन दोस्त। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा। न्यूज़ लेटर्स होते हैं एंड कुछ मतलब गूगल ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग जो भी अपनी पब्लिकेशन होती है डालते हैं। बट देन दैट इज नॉट रेगुलेटेड, काफी ज्यादा ऑडियंस हो जाती है, तो फिर आपको खुद को चूज करना पड़ता है। बट मोस्टली ये है कि तुम एक बार पेपर का टाइटल देखो, फिर एब्स्ट्रैक्ट देख लो। अगर स्टिल वो तुम्हें इंटरेस्ट करता है तभी पेपर पढ़ो, वरना पूरा पेपर ऐसा नहीं कि पहला है पूरा पढ़ लिया फिर लगा कि अच्छा नहीं है फिर दूसरा पढ़ लिया, तो टाइम वेस्ट है। ओके। व्हेन इट्स कम्स टू ऑफ कैंपस, हमारे सीवी और क्वालिटी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक जैसे आपने बोला कोल्ड मिलिंग कर रहे हो, तो कोल्ड मिलिंग में आपको जो क्वालिटी क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, या आप किसी को सीवी फॉरवर्ड करो एज अ रेफरल, तो भी सीवी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे कि सीवी और क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करा जाए, और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए दोनों चीजें बनाते हैं वक्त। सो थैंक यू शिवांश फॉर शेयरिंग कि मतलब अगर आपको कैसे स्टार्ट करना है मशीन लर्निंग में और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस जर्नी। एंड गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको सिंस मशीन लर्निंग है तो बहुत सारे लोग पीएचडी करने जाते हैं, बहुत सारे लोग जॉब्स करने जाते हैं। तो जॉब्स और पीएचडी में क्या फर्क होता है, उसके अंदर आप कैसे कैसे किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। सो थैंक यू शिवांश।